پڑھ رہے تھے۔ تو آج ہمارے معاشرے میں سامنے چارپائی پہ بندہ ہو تو کہتے ہیں جنازہ پڑھ رہے ہو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اعتراض الجنازہ میں جنازے کی طرح سامنے پڑی تھی۔ ہمارے معاشرے میں سترہ چارپائی ہو تو کہتے ہیں اس کے پائے کو سترہ بنا لیں، جبکہ امام الانبیاء نے درمیان کو سترہ بنا لیا تھا۔ مانا کہ پائے والے جانب بھی سترہ بن سکتی ہے، درمیان والی جانب بھی سترہ بن سکتی ہے۔ نمازی کے آگے سے گزرنا منع ہے۔ لو یعلم المار بین یدی المصلی ماذا علیہ من الاثم، اگر گزرنے والے کو پتہ چل جائے کہ نمازی کے آگے گزرنے کا کتنا بڑا گناہ ہے تو وہ اس گناہ کے اس سزا یا عذاب کے ڈر کے مارے خیر اللہ ان یقف 40 سال تک وہ ٹھہرنا تو برداشت کر لے گا، 40 سال تک رکا رہوں یہ برداشت ہے، پر وہ عذاب میں برداشت نہیں کر سکتا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت مشکات میں بھی ہے، سامنے گزرنے والے آدمی کو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے روکا، سنت طریقہ ہے، وہ نہ رکا، ابو سعید خدری نے اس کے اوپر ہاتھ چلا دیا، یعنی سختی سے دھکا، جس طرح تکلیف دے دی۔ تو گزرنے والے کو تکلیف ہوئی، اس نے جا کے مروان کی عدالت میں کیس کر دیا کہ اس صحابی نے مجھے مارا ہے۔ مروان نے پوچھا کیوں مارا ہے؟ تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے مارا ہی نہیں اس کو تو نہیں مارا۔ وہ کہنے لگا مجھے مارا ہے صحابی سچا صحابی، وہ کہتا میں نے اس کو نہیں مارا۔ آخرکار مروان نے پوچھا کہ اس کو تو نہیں مارا، کس کو مارا ہے؟ فرمانے لگے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے سنا تھا کہ نمازی کے آگے سے شیطان گزرتا ہے، میں تو شیطان سے لڑ رہا تھا، میں نے اس کو تو نہیں مارا۔ اندازہ کریں اتنا سخت الفاظ حدیث میں بھی ہیں اور صحابی نے بھی استعمال کیے ہیں، اس لیے نمازی کے آگے سے نہیں گزرنا چاہیے، سترہ بھی ہونا چاہیے۔ نماز ہم نے شروع کرنی ہے تکبیر سے، اللہ اکبر کہہ کر۔ یہ دونوں ہاتھ ہم نے اٹھانے ہیں، کہاں تک اٹھانے ہیں؟ کندھے کے برابر یا کان کے برابر؟ کان کندھے کے برابر ہو گئے یا کان کے برابر؟ کان میں بھی وضاحت آتی ہے کہ یہ کان کا نیچے جو نرما ہے، میری بہنیں میری بیٹیاں اوپر سن رہی ہیں، میں اس لیے خالی اپنے عمل پر اکتفا نہیں کر رہا، اس کو زبان میں ڈھار رہا ہوں، الفاظ میں ڈھار رہا ہوں۔ کان کے نیچے جو نرما ہے اس کے برابر یا کان کے اوپر والے حصے کے برابر، یہاں تک لے جانا، یہ رفع الیدین نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے۔ شروع نماز سے ہم نے اس طرح کرنا ہے۔ بعض لوگ یہ کانوں کو پکڑ لیتے ہیں، یہ پکڑنا بھی نہیں، بعض کھینچتے ہیں، یہ کھینچنا بھی حدیث میں نہیں ہے۔ ان کے برابر کرنا حذاء اذنیہ، دونوں کانوں کے برابر اپنے ہاتھوں کو بلند کرنا، یہ سنت طریقہ ہے۔ اس میں یہ بات بھی قابل وضاحت ہے کہ یہ ہاتھوں کی انگلیاں کھلی نہ ہوں، بند سخت کر کے بند بھی نہ ہوں، ڈھیلا چھوڑ دیں، بند میں بند ہوں انگلیاں، ہاتھ کھلا ہوا ہے، انگلیاں بند ہیں، لیکن شدت سے نہیں بلکہ نرمی سے بند ہیں۔ اس طرح کر کے ہم نے کندھوں کے برابر یا کانوں کے برابر، جس روایت میں ابو داؤد کے اندر ہے سینے کے برابر، وہ روایت ضعیف ہے، سینے کے برابر والی روایت صحیح نہیں ہے۔ یہ ہم نے اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرنی ہے۔ یہاں 3 باتیں ہیں، اللہ اکبر پہلے کہیں گے یا ہاتھ پہلے اٹھائیں گے؟ اب توجہ میرے ساتھ آپ کی رہے کہ اب ایک طریقہ ہے کہ دونوں ہاتھ کانوں کے برابر میں نے کر لیے اور میں نے ان کے برابر کہا اللہ اکبر، یہ ہاتھ میں نے باندھ دیے، یہ ایک طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ دوسرا طریقہ ہے کہ میں نے ہاتھ نہیں اٹھائے کانوں کی طرف، میں نے کہہ دیا اللہ اکبر، اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے میں نے باندھ لیے، یہ طریقہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے۔ دوسرا طریقہ ہے کہ تیسرا، میں نے ہاتھ اٹھا لیے کانوں کے برابر، پھر ان کو باندھ لیا، پھر کہا اللہ اکبر، یہ تیسرا طریقہ۔ یہ تینوں طریقے امام الانبیاء سے ثابت ہے، یعنی برابر اللہ اکبر برابر ہاتھ چلیں، یہ بھی ٹھیک، پہلے اللہ اکبر بعد میں ہاتھ چلیں، یہ بھی ٹھیک، پہلے ہاتھ حرکت کر لے مکمل باندھے جائیں اس کے بعد اللہ اکبر، یہ بھی ٹھیک۔ صرف تکبیر اولیٰ کے لیے نہیں، یہ رکوع کو جاتے ہوئے، رکوع کو اٹھتے ہوئے،
सजदे को जाते हुए, सजदे से उठते हुए, यही कानून है। तो ये नमाज हमने शुरू करनी है अल्लाह अकबर के साथ। बाज भाई हमें कहते हैं जी नमाज से पहले आप बिस्मिल्लाह क्यों नहीं पढ़ते, बिस्मिल्लाह शुरू करें। प्यारे भाई, बिस्मिल्लाह का माना अल्लाह के नाम से शुरू करें, तो अल्लाह अकबर ये भी तो अल्लाह का नाम है। जहां हमें इमामुल अंबिया ने फरमाया कि बिस्मिल्लाह पढ़ो, हम बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। यहां अल्लाह ने फरमाया अल्लाह अकबर कहें, तो हम अल्लाह अकबर भी अल्लाह का नाम, बिस्मिल्लाह भी अल्लाह का नाम। अल्लाह की मर्जी, वो जिस अपने नाम से हमें हुक्म दे हम तामील करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी, वो जिस तरह अल्लाह का हुक्म हमें पहुंचाएं हम उसके मुताबिक अमल करेंगे। बस भाई, अजान से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर अजान शुरू करते हैं। ओ भाई क्यों जी, अच्छा काम बिस्मिल्लाह से भी, अल्लाह अकबर भी तो अल्लाह का नाम है। बाद हमारे भाई दरमियान में चलते चलते जब जाते ना अजान में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, आगे अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहां रोक कर कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्यों कह रहे हो? नबी ने कहा है अजान रोक कर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? नहीं, नबी पाक ने तो नहीं कहा। फिर तुम क्यों कहते हो? अजान कहने वाला या सुनने वाला, किसने उसको इजाजत दी अजान रोक कर पहले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहे? फिर फतवा आता है जी आप तो दुरूद के मुनकर हैं। जी क्यों मुनकर हैं? यहां दुरूद पढ़ने का हमारे नबी ने हमें तरीका दिया है। वो क्या है कि अजान जब खत्म हो जाए तो फिर नबी पर दुरूद पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन, पूरा दुरूद इब्राहिमी। फिर अजान की दुआ अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति तामति वस्सलातिल काइमा, ये मुकम्मल दुआ पढ़ें। फरमाया कि जो आदमी ये दुआ का एहतमाम करता है और जवाब देता है, अल्लाह उसको क़यामत वाले दिन जन्नत नसीब फरमाएगा, नबी की सिफारिश वाजिब हो जाती है उस पर। चाहते हो क़यामत वाले दिन इमामुल अंबिया तेरे मेरे हक में सिफारिश करे, तो अजान का जवाब दें और अजान के बाद की दुआ पढ़ें। तो ये दुरूद दरमियान में नहीं, आखिर में नबी ने सिखाया, तो हम आखिर में पढ़ेंगे। शुरू में अल्लाह अकबर से पहले बिस्मिल्लाह नबी ने नहीं सिखाई, हम क्यों पढ़ें? नमाज हो या अजान हो, अल्लाह अकबर से हमने नमाज शुरू करनी है। दोनों हाथ हमने कंधे के बराबर या कानों के बराबर उठा के अल्लाह अकबर कहा। अब हमने सीने पे हाथ बांधने हैं। बाद लोग नीचे नाफ से बांधते हैं। दुनिया जहान की किसी सही हदीस में नाफ से नीचे बांधने का जिक्र सही हदीस में नहीं है, सही हदीस में नहीं है। कहां बांधना है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वज़अ यदहुल युमना, अपना दायां हाथ रखते थे बाएं हाथ पर, अला सदरिही, अपने सीने पर। बाद हमारे भाई ये हाथ ऊपर यहां ले जाते हैं गर्दन के करीब, ये भी तकल्लुफ है, गलत है। बाद नीचे लटका लेते हैं, ये भी तकल्लुफ है, ये भी ठीक नहीं है। नीचे लटका लेते हैं नाफ के करीब तक, ये भी ठीक नहीं है। हाथ हमने बांधने हैं। दोनों हाथों को बांधने के मुख्तलिफ तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि हाथ दायां बाएं के ऊपर रख कर इस तरह पकड़ ले, दायां हाथ बाएं के ऊपर रख के पकड़ ले, ये एक तरीका। दूसरा तरीका मैं अब हवाले नहीं दे रहा क्योंकि टाइम तेजी से जा रहा है। या ये दोनों हाथों के जो गट है ना, ये दोनों आपस में बराबर करके हाथ को ऊपर छोड़ दे। या तीसरा तरीका है ज़िरा अल ज़िरा, कलाई के ऊपर कलाई रख दें, ये भी ठीक है। ये तीनों तरीके अहादीस से साबित हैं। इनमें से कोई तरीका इख्तियार किया जा सकता है। सही इब्न खुज़ैमा की रिवायत है वज़अ यदहुल युमना अला यदिहिल युसरा अला सदरिही। सही बुखारी में यूं है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कलाई पर कलाई रखते थे। इसमें गलतियां क्या हैं? कलाई पर कलाई रखते हुए हमने एक हाथ के साथ दूसरे की कोहनी को पकड़ लिया, ये गलत है। कोहनी को हमने पकड़ लिया, ये गलत है। इसी तरह हमारे बाज भाई जो हाथ पर हाथ रखते हैं, ये इस तरह रखते हुए ये हाथ ऊपर निकाल लिया, ये देख रहे हैं ना मेरा हाथ ऊपर निकला हुआ है। अब दायां बाएं के ऊपर तो न रहा, ये तो निकल गया है। बाद इसको नीचे छोड़ देते हैं इस तरह, ये भी निकल गया। हाथ के ऊपर हाथ तो तब आएगा कि ये एक दूसरे के ऊपर बराबर रहे, ना ऊपर गर्दन की तरफ ले जाएं ना बिल्कुल नीचे ले जाएं। सीना कहां है? ये दिल के सीध में बराबर है। जो भाई कहते हैं कि नहीं मर्द हजरात नीचे औरतें ऊपर बांधेंगी, क्यों?
کہ رب نے ان کو بیسٹ لگا رکھے ہیں, اللہ نے ان کو سینہ لگا رکھا ہے اس کو چھپانے کے لیے. جس اللہ نے عورت کا وجود بنایا اس کو نہیں پتا تھا کہ میں حکم دے دوں پیغمبر یہاں ان کو ہاتھ باندھنے کا حکم دیں, مردوں کو نیچے حکم دیں. ہمیں پتا چلا اس اللہ نے حکم دیا پیغمبر فرما دیں کوئی عورت نماز جب پڑھے گی لا يقبل اللہ الصلاۃ حائض الا بخمار, جب تک وہ دوپٹہ نہیں اوڑھے گی اس کی نماز نہیں ہوگی. دوپٹے سے وہ اپنا جسم چھپائے گی. یہ کیا کہ عورتیں اوپر مرد نیچے ہاتھ باندھیں, یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ ہمیں ہاتھ باندھنے کا طریقہ ملا. میری ترجیح ہاتھ باندھنے میں یہ کلائی کے اوپر کلائی اکثر ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے. جو صحیح بخاری حدیثیں ہیں ان میں وزن ذرا زیادہ ہے, باقی حدیثیں بھی صحیح ہیں, ان میں بھی انکار نہیں جہاں صحیح سند مل جائے. دوسری حدیث ہے صحیح ابن خزیمہ کی جو سینے والی ہے نا, اور اس سے ہاتھ پکڑنے والی وہ ابو داؤد ترمذی دوسری کتابوں میں ہے. بخاری میں یہ کلائی کے اوپر کلائی ہے. اور جو لوگ یہ گٹ کے اوپر گٹ رکھ کے نا اس طرح ہاتھ یوں اکڑا دیتے ہیں, یہ ہاتھ اکڑا دینا یہ ٹھیک نہیں. جماعت میں مسلمان کو تکلیف دے رہا ہے اپنی کوہنی سے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو تکلیف کیوں دے؟ یہ ان کو ڈھیلا چھوڑ دیں. ہاتھ کے اوپر ہاتھ رہنا یہ ضروری ہے. ہم نے ہاتھ سینے پہ باندھ لیے. ہاتھ سینے پہ باندھنے کے بعد ہم نے دعا پڑھنی ہے جو ہمیں آتی ہے, اللہم باعد بینی یا سبحانک اللہم, جو دعا ہمیں اللہ نے توفیق دی ہے وہ دعا ہم نے پڑھنی ہے. اس کے بعد بسم اللہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ, یہ اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ شروع کریں. جس کو یہ اعوذ باللہ نہیں آتا تو یاد کرے, جب تک یاد نہیں ہوتا تو دوسرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے بھی کام چل جائے گا, اس سے بھی کام چل جائے گا. اب سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے. جب بندہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین, اللہ عرش سے جواب دیتا ہے حامدنی عبدی, میرے بندے نے میری حمد بیان کی ہے. جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم, اللہ عرش پہ جواب دیتا ہے اثنا علی عبدی, میرے بندے نے میری ثنا خوانی کی ہے. جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین, اللہ عرش پہ جواب دیتا ہے مجدنی عبدی, میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے. ایاک نعبد تک فرمائے یہ بندہ اللہ کی تعریف کر رہا ہے, آگے اپنے لیے مانگ رہا ہے. یہ نماز میں فاتحہ پڑھنا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب امام کے لیے بھی ضروری ہے, مقتدی کے لیے بھی ضروری ہے, منفرد کے لیے بھی ضروری ہے, فردوں میں بھی, سنتوں میں بھی, وتر میں بھی, عید میں بھی, کسوف میں بھی, خسوف میں بھی, جون سی نماز ہو ہر نماز کے اندر ضروری ہے فاتحہ پڑھنا. سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتویٰ تو دے رہے ہیں فاتحہ پڑھنے کا, انا نکون وراء الامام, ہم جب امام کے پیچھے ہوں تو پھر. صحیح مسلم کی حدیث. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اقرا بہا فی نفسک یا فارسیو, جب امام کے پیچھے ہو تو سلمان فارسی دل میں پڑھ لیا کر, دل میں پڑھ. اقرا کا معنی ہوتا ہے تیرے ہونٹ حرکت کریں فاتحہ پڑھتے ہوئے, زبان حرکت کرے, دانت حرکت کریں لیکن آواز نہ نکلے, یہ ہوتا ہے اقرا پڑھنا. خالی ذہن میں سوچنا, نہ ہونٹ ہلے, نہ دانت ہلے, نہ زبان ہلے, یہ سوچنا ہوتا ہے. اسلام نے نماز میں سوچنے کا حکم نہیں دیا. بعض ہمارے بھائی نماز میں خالی سوچ رہے ہوتے ہیں. بعض بھائی خشوع بڑھانے کے لیے نا وہ بس میں سوچ رہا ہوں. نہیں میرے پیارے بھائی, نماز میں سوچنا نہیں, نماز میں نگاہ آنکھیں کھول کے رکھنی ہے, آنکھیں بند نہیں رکھنی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی سیدہ عائشہ کے گھر میں. سامنے دیکھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے میں ایک پردہ لگا ہوا تھا جس کے اوپر تصویریں تھیں. آپ نے نماز مکمل کرنے کے بعد فرمایا امیتی انی کرامک ھذا, یہ پردہ ہٹا دو فانھا الہتنی فی صلاتی, یہ میری نماز میں مجھے غافل کرتا ہے. تو نبی نے نماز مکمل کر کے ہٹوایا تھا. آج بعض لوگ اسی وقت ہی نماز توڑ دیتے ہیں, یہ توڑنے کا حکم نہیں ہے. نماز ہو تو جائے گی لیکن اس کو ہونا نہ چاہیے, ارادتاً نہ رکھیں, بھولے سے ہو جائے تو نماز اللہ قبول کرے گا. دوسرا, اگر آنکھیں بند کر کے نماز ہوتی تو نبی کو پردہ کیوں نظر آتا؟
आंखें बंद करके नमाज होती तो पर्दा क्यों नजर आता? माना कि आंखें खोल के पढ़नी है नमाज। इसी तरह दो दलीलें, एक और दलील है कि नबी पाक फरमाते हैं जब नमाज की हालत में सामने सांप या बिच्छू आ जाए उसको मार डालें। आंखें बंद होंगी तो नजर कैसे आएगा? आंखें खुली होंगी तो नजर आएगा ना। इस तरह और भी बहुत सारे दलाइल हैं। आपने एक दिन फरमाया मेरे सामने मेहराब के ऊपर अल्लाह ने पूरी जन्नत मुझे दिखाई, पूरी जहन्नम मुझे दिखाई। आंखें बंद होती तो कैसे नजर आता? ये बेशुमार दलाइल हैं। आंखें खुली रखनी चाहिए, लेकिन निगाह सजदे वाली जगह पे हो। ये ना हो कि निगाह हर तरफ घूम रही हो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि लयंतहियन्न अक़वामुन अन रफ़इल अबसारे, कौमें, बंदे अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाने से बाज आ जाएं, ना बाज आए तो औ लयख्तमन्नल्लाहु, वरना यूं होगा कि अल्लाह पाक लयख्तफन्नल्लाह, अल्लाह इनकी आंखें उचक लेगा, इनको अंधा कर देगा। तुमने नमाज में आंखें ऊपर उठाई क्यों? ये डांट है, ये धमकी है, डरावा है कि डर जाएं, नमाज में निगाहें ऊपर ना उठाएं। बाद का यूं होता है कि इमाम साहब यहां मस्जिद में नमाज पढ़ा के बैठे हैं, मुक्तदी सुनते पढ़ रहे हैं या बकिया रकाते हैं, तो उनकी निगाह थोड़ी देर बाद फिर इमाम पे पड़ती है, इमाम क्या कर रहा है। फिर इमाम जब देखता है तो वो निगाहें हटा लेते हैं। न मेरे प्यारे भाई, सजदे वाली जगह पे देखें, इमाम को क्यों देख रहे हैं? वो तो देखा हुआ है। अगर वो दाएं देखता है या बाएं देखता है, ऊपर देखता है या आगे देखता है, ये नमाज में मना है। नमाज में सजदे वाली जगह पे निगाह रखनी है, इससे आगे दाएं बाएं ना फैलाएं। हाँ, निगाह का एक दायरा होता है, वो एक दायरा, उसमें कोई गुजरे तो महसूस हो जाता है, तो महसूस होना ये हमारे बस की बात नहीं। जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी के आखिरी सोमवार पूछा कि लोग क्या कर रहे हैं, पता चला कि फजर की नमाज पढ़ रहे हैं। इमाम उल अंबिया ने फरमाया मुझे उठाएं, मैं नमाजियों को देखना चाहता हूं। तो दो आदमियों ने, चार ने मिल के नबी अलैहिस्सलाम को नजारा कराया। आपने जो ही मेहराब से देखा तो सहाबा कहते हैं कि हम थे तो नमाज में, हमारे निगाह के दायरे में नबी अलैहिस्सलाम जो ही आए, नकादु अन नफ्ततना फी सलातना, से बुखारी के अल्फाज हैं, इतना हम खुश हुए कि अब नबी ठीक हो गए। दिल दिल में खतरा था कि इस बड़ी खुशी से हमारी नमाजें न टूट जाएं। लेकिन हुआ यूं कि नबी अलैहिस्सलाम ने अरखस सित्रा, पर्दा लटकाया, पीछे चले गए, आप लेट गए। उसके बाद उसी दिन ही आप दुनिया से रेलत फरमा के चले गए। माना कि निगाह का जहां तक दायरा है ये तो एक मजबूरी है, बाकी इधर उधर निगाह उठाना ठीक नहीं है। ये हमने सूरत फातिहा पढ़ ली, इज़ा क़ाल इमाम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन फ़क़ूलू आमीन, जब इमाम आमीन कहे तो तुम भी आमीन उसके साथ कहो, उसके साथ तुमने भी आमीन कहनी है। रफ़ा बिहा सौतहू, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आमीन कहते हुए आवाज बुलंद करते, ऊंची आवाज करते। मैं इसकी मिसाल देता हूं, आमीन ये आहिस्ता है, रफ़ा का माना आमीन, तो ये ऊंची ऊंची आवाज है। दूसरी हदीस में है मद्दा बिहा सौतहू, खींचते, खींचने के माना है आमीन, आवाज भी बुलंद और मद को भी खींचा जा रहा है, आमीन। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये तालीम दी है। जब हम रकू की तरफ जाते हैं तो कोई एक नौजवान आ जाए, मैं रकू उसके साथ मिलकर रकू का तरीका बताऊं, आ जाए, लेकिन ये उतार देना ताकि सही नजर आ सके। रुकू की तरफ जाने के लिए हमने दोनों हाथ उठाने हैं, दोनों हाथ हमने कंधों की तरफ उठा के कंधों तक या कानों तक, फिर हमने रुकू की तरफ झुकना है और झुकते हुए दोनों हाथों को इस तरह, घुटनों को दोनों हाथों के साथ हमने पकड़ना है। ये रुकू, ये सजदा बतौर इबादत नहीं, बतौर तजर्बा और प्रैक्टिस है। ये जो सजदा अल्लाह को होता है ये वो नहीं, ये प्रैक्टिस की जा रही है। करें रुकू, इधर मुंह करके कर लें। ये अब देखें ना, ये रुकू भाई ने किया है। बाद लोग रुकू करते वक्त यूं सर रखते हैं, ये गलत है, ये ऊपर है सर, बाद नीचे चले जाते हैं, ये भी गलत है। ये दोनों तरीके गलत हैं। अब ये दरमियान में कंधा, कमर उनकी बराबर सीधी हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे सहाबा फरमाते हैं कि अगर उसके ऊपर प्याला पानी का रख दिया जाता तो वो पानी भी ना डूलता, इतना आपकी कमर सीधी होती। बाद लोग यूं रुकू में सर ऊपर कर लेते हैं, ये गलत।
بعض نیچے بالکل جھکا لیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ اسی طرح یہ دونوں بازو نہ اس طرح اکڑا کے رکھیں، یوں نہ یہاں پکڑے نا، یہ دونوں بازو اکڑا کے رکھیں سیدھے کر کے اس طرح۔ اب یہ رکوع ہے صحیح، بعد یہ دائیں کی طرف موڑ لیتے ہیں، کھینچ لیتے ہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں۔ اس میں حدیث ہے وَوَتَّرَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدیہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دونوں ہاتھوں کو کمان بناتے تھے۔ اب کمان بنانے میں بھائیوں کو غلطی لگی، انہوں نے کہا اس طرح ٹیڑھا ہو ہاتھ، حالانکہ یہ مراد نہیں۔ تیر جو کمان سے پھینکا جاتا ہے وہ کمان ایک طرف گلائی میں ہوتی ہے، ایک طرف سیدھی ہوتی ہے، ایک سائیڈ میں گلائی، تو یہ بندے کا جسم گلائی میں آ گیا، کمر اور ٹانگیں یہ گلائی میں، اور ہاتھ بالکل سیدھے، یہ کمان بن گئی، تیر کمان جس طرح پھینکا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح رکوع کرنے کا حکم دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع میں جو دعائیں سکھائی ہیں ہم نے وہ پڑھنی ہیں، اور دونوں ہاتھوں کو اس طرح گھٹنوں کو، دونوں ہاتھوں کے ساتھ گھٹنوں کو پکڑنا ہے، ایسے خالی سپورٹ نہیں۔ سپورٹ سے بعض اوقات بندہ پھسل بھی تو سکتا ہے، لیکن سنت ہے پکڑنا، ہم تو سنت سمجھ کے پکڑیں گے۔ رکوع کے بعد اب بندہ اٹھے گا، اٹھتے وقت سمی اللہ لمن حمیدہ امام بھی کہے گا، مقتدی بھی کہیں گے۔ جو لوگ بھولے اس معاملے میں ان کو غلطی یہ لگی کہ حدیث میں ہے اذا قال الامام سمی اللہ لمن حمیدہ فقولوا ربنا ولک الحمد، جب امام کہے سمی اللہ لمن حمیدہ تم ربنا ولک الحمد کہو۔ یہ جملہ بالکل بھلواتا ہے، بندہ بھول جاتا ہے۔ اب جملے پہ دوبارہ غور کریں، اذا قال الامام، جب امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، بلکہ نہیں، اذا قال الامام سمی اللہ لمن حمیدہ، امام کہے سمی اللہ لمن حمیدہ تو تم کہو ربنا ولک الحمد۔ سمجھ آئی بات کہ سامی اللہ کہنا امام کی ذمہ داری ہے، ربنا ولک الحمد مقتدی کی ذمہ داری ہے، یہ بھلے کا لگا۔ اب اگر یہی تقسیم مان لیں تو سامی اللہ تو امام کی ذمہ داری ہو گئی، اب امام ربنا ولک الحمد نہیں پڑھے گا۔ اس حدیث کا مفہوم ذرا غور کرے کہ امام نے سامی اللہ اس کی ذمہ داری ہے، تو کیا امام پھر ربنا ولک الحمد نہیں پڑھے گا؟ جس طرح امام سامی اللہ کے بعد ربنا ولک الحمد پڑھے گا، اسی طرح مقتدی بھی سامی اللہ کہے گا، لیکن امام کے پیچھے پیچھے۔ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ امام ابھی کھڑا ہے، یہ سجدے کی طرف گر رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امام سے جلدی نہ کرو، جو امام سے جلدی کرتا ہے اس کو ڈرنا چاہیے، عسى ان يحول اللہ رأسه رأس حمار، کہیں اللہ ناراض ہوا تو اس کا سر گدھے جیسا نہ بنا دے۔ اتنا بڑی ڈانٹ ہے، سختی ہے، اس کے اندر صف کے بھی کافی مسائل ہیں کہ صف میں ہم نے پاؤں کس طرح رکھنے ہیں، سیدھے قبلہ رخ کی طرف رکھنے ہیں، رکوع کے وقت اپنے قدموں کا رخ قبلے کی طرف کرنا ہے، اس کے بعد ہم نے سجدے کی طرف جانا ہے۔ سجدے میں جانے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فلا یبرک کما یبرک البعیر، اونٹ کی طرح نہ بیٹھو۔ اب یہاں ایک علمی بات ہے، میں وہ کرا تو نہیں سکتا، اشارہ دے دیتا ہوں۔ اونٹ کی طرح نہ بیٹھیں، چار ٹانگوں والے جانور کا گھٹنا اگلے قدموں میں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ ہے نا، انسان کے آگے دونوں ہاتھ، ان ہاتھوں کی یہ کوہنی کہتے ہیں، اس کو گھٹنا نہیں کہتے۔ اگر یہ اونٹ ہو تو اونٹ کے اگلے ہاتھوں کے اندر جو ہوتا ہے اس کو گھٹنا کہا جاتا ہے۔ سنا ہے نا بھی اونٹ کا گھٹنا باندھو پھر اللہ پر توکل کرو، کبھی سنا ہے کہ پچھلی ٹانگ اس کی باندھی گئی ہو؟ مانا کہ چار ٹانگوں والے کا گھٹنا اس کا قانون الگ، دو ٹانگوں والے کا قانون الگ۔ بہرحال یہ اگر علمی بات نہ بھی سمجھ آئے تو مشکل نہیں، اگلے حدیث کے الفاظ سن لیں، وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ، حدیث کے الفاظ ہیں پہلے ہاتھ رکھو بعد میں گھٹنے ٹیکو۔ یہ صراحت آ گئی ہے، پہلے ہاتھ رکھیں بعد میں گھٹنے ٹیکیں۔ بعض لوگ گھٹنوں کے بل پہلے گر جاتے ہیں بعد میں ہاتھ رکھتے ہیں، یہ سنت کی مخالفت ہے۔ سجدے کی طرف جاتے ہوئے کر سے اوپر چڑھیں، قبلہ رخ ہو کر سجدہ کریں۔ سجدہ ہمارے قاری عصمت اللہ صاحب آف لودھراں کر رہے ہیں، تو یہ سجدہ انہوں نے کیا ہے، یہ دیکھیں دونوں پاؤں ان کے یہ پنجے جو ہے نا نیچے یہ دبے ہوئے ہیں، ان کی انگلیوں کا رخ، دونوں قدموں کی انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہے، اور دونوں ایڑیوں کو آپس میں ملانا یہ شرط ہے سجدے میں۔
दोनों एड़ियां आपस में मिली हुई हूं, दोनों एड़ियां आपस में मिली हुई हूं और कदमों के ऊपर इतना प्रेशर दबाव दें कि उंगलियों का रुख किबले की तरफ हो जाए। ये बीमार के लिए जरूरी नहीं है, ये सेहतमंद के लिए। बीमार की कोई मजबूरी है तो ला हराजा। और इसी तरह आपने देखा ये उनकी दोनों रानें बिल्कुल सीधी खड़ी हैं, इनको पीछे थोड़ा ढीला हो जाए। ये रानें अब सीधी नहीं है, ये गलत तरीका है सजदे का। रानें बिल्कुल इस तरह सीधी हैं और ये दोनों हाथ हमने कहां रखने हैं, ये आगे खींच लें तो ये गलत है, पीछे खींच लें तब भी गलत है, ये दोनों कोहनियां जमीन पर गिरा दे तब भी गलत है। कोहनियां जमीन पर नहीं डालनी बल्कि कोहनियों दोनों को उठाना है, हाथों को कान और कंधों के दरमियान में रखना है, कान और कंधों के दरमियान में। और ये दोनों कोहनियां ना पेट से लगे ना रान से लगे, और पेट भी रान से न लगे। रान और पेट जुदा और कोहनी और पेट और रान ये तीनों अलग अलग हों। ये है तन्हाई में। जब आप जमात में हैं तो ये सख्ती न करें, कहीं मुसलमान को तकलीफ ना दे। उस वक्त तो साथी का भी ख्याल करना है कि साथी को भी तकलीफ ना हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बैठ जाएं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उमिरतु अन अस्जुदा अला सबअति आदमिन, मुझे हुक्म दिया गया है कि 7 हड्डियों पे सजदा करूं। 2 कदम, 2 घुटने 4, इसी तरह 2 हाथ 6, और नाक और माथे की एक ही हड्डी है, नाक और माथा एक ही हड्डी है, इसके ऊपर सजदा। बाद हमारे भाई माथा तो टिका देते हैं, नाक उठा लेते हैं, ये गलत। बाद नाक टिका देते हैं, माथा उठा लेते हैं, ये भी गलत। नाक और माथा ये दोनों एक ही हड्डी है, इसको जमीन के ऊपर जम जाना चाहिए। ये सजदे का सही तरीका। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अक़रब मा यकूनुल अब्दु मिन रब्बिही व हुवा साजिदुन, बंदा सबसे ज्यादा अल्लाह के करीब तब होता है जब सजदे में हो। तो जब सजदे में है अल्लाह के करीब, फरमाया फ़क़ामिनुन अन युस्तजाब लकुम, ये दुआ की कबूलियत का वक्त है। फजतहिदू फीहि दुआ, रज के सैर होकर दुआएं मांगो, ये मौका है सजदे में रब से मनवाने का। जो मनवाना चाहो अल्लाह से खूब मांग मांग कर मनवा लो। अब सजदे से कारी साहब उठे, अब ये अपने ये दाईं साइड है ना, बायां कदम इन्होंने बिछा दिया। आप देख रहे हैं बायां कदम जमीन पर उन्होंने बिछा दिया, बाएं कदम के ऊपर चढ़ के बैठ गए और इन्होंने अपना दायां कदम ये खड़ा कर दिया। और दायां कदम इन्होंने जो खड़ा किया है उसकी उंगलियों का रुख किबले की तरफ है। ये तरीका है बैठने का। ये सजदे की दुआएं अलग हैं। सजदे के बाद अभी उठ के बैठे हैं तो यहां बैठकर भी दुआएं हैं। ये नहीं कि बस उठ के फौरन गिर जाए, ये गलत है। अब ये दोबारा सजदा करेंगे, कर सब सजदा करके आपने उठना है। ये सजदा दूसरा कर रहे हैं बिल्कुल सेम जिस तरह पहले सजदा है। अब इसके बाद ये उठ रहे हैं, उठने का तरीका ये गलत तरीका है। ये इन्होंने उठाया ना, ये तरीका इनका गलत है, क्योंकि पहली रकात के सजदा दोनों सजदों के बाद जलसा इस्तराहत होता है। वो जलसा इस्तराहत इन्होंने नहीं किया, ये गलत तरीका। दोबारा ये दूसरा सजदा करके उठ रहे। अब उठें, जलसा इस्तराहत करें। ये देखें ये बैठ गए हैं, ये जलसा इस्तराहत। ये 2 सेकंड 5 सेकंड के लिए, चंद सेकंड के लिए थोड़ा सा सस्ता करना, फिर आप उठेंगे, दोबारा उठें। ये 2 सजदे तो हो चुके ना। 2 सजदों के बाद ये उठने से पहले थोड़ी देर के लिए बैठ जाना है, बैठकर फिर उठना है। ये पहली रकात से उठने का तरीका यही, तीसरी रकात से उठने का तरीका भी यही है। थोड़ा सा बैठकर बाद में उठें। जब हम उठे हैं तो फिर दूसरी रकात हमारी शुरू होगी। दूसरी रकात हम जब 2 सजदों पर मुकम्मल करेंगे, 2 सजदों पर दूसरी रकात मुकम्मल करने के बाद फिर हम अत्तहियात बैठेंगे। तो पहले अत्तहियात में, ठीक है कर सब, पहले अत्तहियात में जो 4 रकात या 3 रकात वाली नमाज है, पहले अत्तहियात में दुरूद शरीफ पढ़ना ये ठीक है। अमूमन पाया जाता है कि दुरूद पहली अत्तहियात में नहीं पढ़ा जाता। समझाने में काफी टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं शॉर्टकट इशारा देता हूं। कुरान में 2 चीजों का इकट्ठे एक साथ हुक्म है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। सल्लु माना दुरूद पढ़ो, सल्लिमू सलाम पढ़ो, ये 2 चीजें हैं। जहां अत्तहियात में हम पढ़ेंगे अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो,
वहां हम पढ़ेंगे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, क्योंकि अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो, इसमें सलाम है। जहां सलाम सल्लमू पर अमल करेंगे, वहां सल्लू दुरूद पर भी हम अमल करेंगे, दुरूद भी पढ़ना चाहिए। तो दूसरा तहियात मुकम्मल करके जब हम उठेंगे, ये 2 रकतें हमारी मुकम्मल हो गई। 2 रकत मुकम्मल करने के बाद जो ही उठेगा तो उठकर फिर रफ़्ल यदैन करके दोनों हाथ कंधों के बराबर उठा के या कानों के बराबर उठा के फिर तीसरी रकात में खड़ा होगा। ये उसका मुकम्मल तीसरी रकात, फिर इसी तरह चौथी रकात, तीसरी रकात से उठते हुए जलसा इस्तराहत करेगा। चौथी रकात में अत्तहियात के लिए इसने बैठना है। अत्तहियात में बैठने के लिए 3 तरीके हैं। एक, 2 उंगलियों को बंद कर दें, अपने दाएं हाथ की 2 उंगलियां बंद कर दें और तशहुद वाली उंगली के साथ वाली को यूं उसके आखिरी पोरे से अंगूठे के साथ टच कर दें। ये एक तरीका हो गया। दूसरा है कि तीनों उंगलियां मिला दें, तशहुद वाली उंगली की जड़ में अपना अंगूठा फिट कर दें। ये एक तरीका हो गया। तीसरा तरीका यह है कि यहां नीचे उंगली के ऊपर अंगूठा रख लें। इनमें से कोई एक तरीका अपनाया जा सकता है। यहां रख लें या दूसरा ये रख लें या यूं पकड़ लें। ये अत्तहियात में हम बैठे हैं तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी अत्तहियात में काना युहर्रिकुहा, उंगली को हरकत देते थे। तो ये दाई उंगली, दाएं हाथ की तशहुद वाली उंगली हरकत करती रहेगी। ये हरकत कितना शाइस्ता अंदाज में करती रहेगी सलाम तक। इसमें जो हमारा पुराना मौकिफ था कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पर उंगली उठाएंगे, इसके अलावा नहीं, ये हमें पहले इल्म की कमी थी। हमारे उलमा, मेरे समय सब कहते थे हमारे इल्म की कमजोरी थी, हम अल्लाह से माफी मांगते हैं। जब हमें सही मसले का पता चला कि उंगली को हरकत तो देनी है लेकिन तसलसल के साथ देनी है और नमाज मुकम्मल होने तक सलाम तक देनी है, उसके बाद हमने सलाम फेरना है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, फिर बाईं तरफ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, ऐ अल्लाह सलामती भेज मेरे दाईं तरफ जितना नमाजी बैठे हैं इनके ऊपर और रहमतें भेज, बाईं तरफ जितना नमाजी बैठे हैं अल्लाह इनके ऊपर सलाम और रहमत भेज। अब अगर नमाजी नहीं है, मैं अकेला हूं, तो फिर किस पर रहमत? अल्लाह मेरे दाईं तरफ वाले फरिश्तों पे रहमत भेज, बाईं तरफ वाले फरिश्तों पे रहमत और सलामती भेज। इसी तरह सलाम फेरते वक्त एक तरफ कहें अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, ये भी साबित है। दूसरी तरफ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, बस ये भी साबित है। व बरकातहू का इजाफा एक तरफ, ये भी सुन्नत से साबित है। उसके बाद हमने जिक्र अज़कार करना है, वो दुआएं हैं जो नमाज के बाद पढ़नी हैं। ये भी हैरत वाला जुमला है। कुरान ने जहां हुक्म दिया अकीमुस्सलात, नमाज कायम करो, तो वहां ये भी हुक्म है इदा क़ज़यतुमुस्सलात फ़ज़कुरुल्लाह, नमाज मुकम्मल होने के बाद फ़ज़कुरुल्लाह, जिक्र करो। तो वो अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारक या ज़ल जलाल वल इकराम, इन अज़कार का भी आर्डर उसी तरह जिस तरह नमाज पढ़ने का आर्डर है। तो हमने नमाज तो पढ़ी, उसके साथ अज़कार की तरफ हमारी तवज्जो कम है, तो हमें अज़कार की तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। ये एक अलग तफसील है, आपका काफी टाइम में ले चुका हूं। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह हमें सही अकीदा और अमल नसीब फरमाए। जी, अत्तहियात में दायां हाथ तो इस तरह बनाना है जिस तरह आखिरी अत्तहियात में। इसके अलावा बायां हाथ रान के ऊपर हाथ रखना है। इसी तरह पहले अत्तहियात में दोनों हाथ हमने रान के ऊपर, दायां हाथ दाईं रान पे, बायां हाथ बाईं रान पे। थोड़ा उंगलियां आगे बढ़ जाएं, कोई हर्ज नहीं। बाद लोग कहते हैं बढ़ी हुई उंगलियां काट दें, अगर घुटना बड़ा हुआ तो घुटना काट दें, ये बात सही नहीं है, तकल्लुफ है। उंगलियां अगर थोड़ा आगे बढ़ जाएं तो भी कोई हर्ज नहीं, वरना रान के ऊपर दायां हाथ दाईं रान पर, बायां हाथ बाईं रान पर। दूसरा ये इमाम साहब के किसी किरात में करनी या सिर्फ सुजूद में? इमाम की इक्तदा तमाम मामलात में है, इल्ला के चंद चीजें। मिसाल के तौर पर इन्नमा जुअल इमाम लियुतम बिही, इमाम की इक्तदा करें, इमाम के पीछे पीछे चलें। वो अल्लाह अकबर कह ले आप बाद में कहें, वो रुकू में पहुंच जाए आप पीछे उसके चलें, सजदे में पहुंच जाए बाद में आप चलें, ये हम उसकी इक्तदा करेंगे। लेकिन वो फातिहा के आगे किरत कर रहे हमने नहीं करनी, वहां हमने सटाप करना है।
फातिहा के आगे किरत हमारी जिम्मेदारी में नहीं है। इमाम से पहले किरात कर सकते हैं, सूरह फातिहा पढ़ सकते हैं। इमाम से पहले सूरह फातिहा नहीं पढ़नी चाहिए। अगर इमाम के साथ पढ़े कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उससे पहले पढ़ना मना है। अरब फातिहा के मुकम्मल करने के बाद वक्फा देते हैं, जिसकी फातिहा रह गई है वो पढ़ ले। हमारे अंदर कोताही है, हम वक्फा नहीं देते, ये हमारी कमजोरी है, हमें वक्फा देना चाहिए। क्या गुस्ल जनाबत के साथ जुमा पढ़ सकते हैं या गुस्ल जनाबत हो तो मस्जिद में आना ही हराम है, इल्ला के बीमार आदमी तयम्मुम कर सकता है, या जिसको पानी ना मिले वो तयम्मुम कर सकता है, उसके लिए एक अलग सी मजबूरी है, तो उसके लिए तयम्मुम करके जुमा में आना जायज है। गुस्ल जनाबत के साथ और गुस्ल जुमा के लिए करना पड़ेगा। हाँ, एक आदमी जुमे वाले दिन उठा है, उसको एक फर्जी गुस्ल था, दूसरा उसने गुस्ल करना था जुम्मे का, 2 गुस्ल। अब इसके लिए वो एक गुस्ल करके दोबारा जुम्मे का गुस्ल करे, नहीं, वो एक ही गुस्ल के अंदर दोनों नियतें कर ले, दोनों उसके गुस्ल मुकम्मल एक के अंदर ही हो जाएंगे। अगर जुराब फटी हो नीचे से, जुराबें फटी हुई हों तो उसके ऊपर मसा नहीं करना चाहिए। मोटी जुराबें और सही सालम जुराबें हों तो उनके ऊपर तब मसा करें जब वुजू की हालत में पहनी हूं, बगैर वुजू के पहनी है तो फिर भी मसा नहीं है। सवाल है कि यक तरफा तलाक अदालत के जरिए हो सकती है या नहीं, और तलाक के बाद औरत का इद्दत का दौरानिया कितना है। तलाक तब अदालत देती है जब फरीकैन का इख्तलाफ हो, यानी मियां बीवी आपस में सुलह न कर पाए, खामद उसको बसाना नहीं चाहता या तकलीफ देता है, बीवी को कोई शिकवा शिकायत है, वो उसको कहती है तलाक दे, वो तलाक देता नहीं। इस्लाम कहता है कि फिर अदालत से रुजू कर सकते हैं, अगर औरत हो हक पर, जालिम ना हो, मुजरम ना हो, उस औरत के कहीं नाजायज ताल्लुकात हों और फिर तलाक के मुतालबे करे, ये तो तलाक नहीं होगी। जिस औरत का हक है, कसूरवार नहीं है, मर्द कसूरवार है, फिर अदालत में चली गई, वहां मर्द पेश होगा तो भी तलाक हो जाएगी, मर्द पेश नहीं होगा तो अदालत को अथॉरिटी है, वो तलाक नाफिज कर सकती है। यह अलग बात है कि हमारे अदालतों के कानून मुकम्मल कुरान हदीस के मुताबिक नहीं है, लेकिन उसका मुतबादिल हल भी तो हमारे पास नहीं, तो अदालत वाली तलाक हो जाएगी। बाकी रहा कि अदालत जो तलाक लिख कर देती है ना, डिग्री वो लिख कर देती है, हम एक तलाक दे रहे हैं और इसकी 3 महीने आपके पास इद्दत मौजूद है। अदालत कभी 2 तलाकें नहीं लिख कर देती, यानी उसकी तलाक न 2 होती हैं न 3 होती हैं, वो एक तलाक नाफिज करते हैं। तो जब एक तलाक है, इद्दत भी उसकी 3 माह है, यानी 3 मेंसेस, उसके बाद औरत कहीं चाहे तो निकाह कर ले, वापस आना चाहे तो इद्दत के अंदर रजू कर सकती है, इद्दत के बाद तजदीद निकाह कर सकती है, क्योंकि अदालत की डिग्री सिर्फ एक तलाक पर होती है, दूसरी तलाक उसके कानून में नहीं है। सवाल, मेरा निकाह हो गया है, तमाम शराइत पूरी कर दी हैं और जमीन भी लिख दी है, इसके बावजूद रुखसती के लिए आजकल कह रहे हैं और कोई तारीख मुकर्रर नहीं कर रहे, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो रुखसती करनी चाहिए, उसकी रुखसती की जो तरतीब है वो रुखसती की तरतीब बनाई जाए, उसके मुताबिक रुखसती हो। हर आदमी इज्जत वाला होता है, निकाह हो चुका है, निकाह की बुनियाद पर चोरी अपनी बीवी को ले जाए तो क्या आपने ससुर को बाप बना के इज्जत दी है, सास को मां बना के इज्जत दी है? अगर उसको चोरी ले जाए तो इसको इज्जत के साथ रुखसती की प्लानिंग की जाए। हाँ, अगर आपका वहां निभा नहीं हो रहा, आपको शिकवा शिकायत है, तो फिर दोनों फरीक समझदार दानाबीना जज लोग जाकर मिले, अगर मामला फिर भी मुफाहमत की तरफ ना हो तो फिर कहीं और शादी कर सकता है, उसको इख्तियार है। या लड़की टाइम देखो कहाँ, या लड़की ब्यूटी पार्लर पर तैयार हो सकती है, औरत को मेकअप करने का हक है, फजूल खर्ची मना है। आजकल तो मैंने कल निकाह पर था, अब यहाँ अजीज बैठे हैं, मैं बार बार पूछता रहा कि कितना देर है, कितना देर है। जो 3:30 बजे वाला निकाह था वो मगरिब के बाद हुआ, क्योंकि लड़का ब्यूटी पार्लर से नहीं आया। आप लड़कियों को रो रहे हैं, मैं तो कल वो लड़के की ना वो सजा भुगत चुका हूं। मिल के दुआ करें, अल्लाह पाक हमें सबको इस्लाम पे चलने की तौफीक अता फरमाए।